Namaskar, Pisces, and this is the reading for the no contact for the sign of Pisces from 21st to 31st of December. Now, please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Don't try to fit in. You can check your Sun, Moon, Rising, and Venus, and remember that energies can shift or change anytime, and roles can be reversed. That is, this could be your energy or vice versa. तो you know contact reading है for the sign of Pisces. So let's see. Here I will check your energy first, then your person's energy, and give you the outcome for the next 10 days at least. What's going on for the sign of Pisces? Please give me what is going on with Pisces. What is the energy of Pisces, my love team? What is the energy of Pisces? Okay, we have got the Wheel of Fortune. I think Cancer also got this. No, the person got this Wheel of Fortune. So Pisces, your time is definitely changing. A huge change is happening in your life. और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको समय के साथ चलना पड़ेगा. अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे या आप वो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देंगे. नाउ यू विल आस्क व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़. तो वो आपको किसी भी फॉर्म में ब्लेसिंग आ सकती है. डेस्टिनी इज़ मूविंग इन योर फेवर. डेस्टिनी इज़ टर्निंग इन योर फेवर. तो हो सकता है कि आपको अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें या आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलें. For example, in your relationship, in your work, in your home, some good luck is going to happen. Things are definitely changing because seasons is changing. Pisces, very very beautiful. You have got the destiny card, which is the wheel of fortune. तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है. ये जो कुछ भी हो रहा है ये डेस्टिनी के हाथ में है, ये यूनिवर्स के हाथ में है. So let's clarify the energy of the person of Pisces, my love team. What is the energy of the person of Pisces? What is the energy of the person of Pisces, my love team? All right, we have got the world. My God, you have got this destiny card, Wheel of Fortune, and the world. You could be dealing with a Scorpio, Aquarius, Leo, or Taurus. Now, जो आपके पर्सन की एनर्जी है कि they are finishing a very big cycle in their life. I think you and both of you, because your time is changing and their time is also changing. Definitely, because we have got the world card, which is the last card in the deck. तो कोई ना कोई आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है. We will clarify and see why it is so, because their destiny is also changing for the better. Now let's see what is the outcome. What is the outcome for Pisces for the next 10 days, my love team? What is the outcome for Pisces? Okay, we have got the King of Wands. तो आपके आउटकम में ये कोई पर्सन भी हो सकता है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. मे नॉट बी गो विद द एनर्जी. कोई फायर साइन हो सकता है, या फिर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अपने अपने ईगो में हैं. एंड नोबडी वांट्स टू टेक एनी एनी काइंड ऑफ एक्शन. तो यू बोथ आर कॉन्फिडेंट इन योर ओन सेल्फ. आप दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं विद द 4 ऑफ कप्स. इट सीम्स दैट आपके पास ऑप्शंस हैं. आप दोनों के पास ऑप्शंस हैं. सो वी विल क्लैरिफाई एंड सी. नाउ लेट्स क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर Pisces. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम हियर. आई गेस आप दोनों ही अपने अपने एनर्जी में है, अपने अपने पावर में है. आप लोगों ने दोनों ने ही अपनी लाइफ का पावर अपने हाथ में ले लिया है. आप एक दोनों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं. सो लेट्स क्लैरिफाई the energy of Pisces, which is the wheel of fortune. So let's clarify the wheel of fortune. So please claim this positive energy. Okay, we have got the Hierophant, we have got the 8 of cups, and we have got the Ace of cups. तो Pisces, आप जो है यू आर इमोशनली डिसकनेक्टेड विद योर पार्टनर.
there could be a love offer or there could be a healing, self love, self care, और आप अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं विद हायरोफेंट। आप अपने विचारधारा, अपने नज़रिए के हिसाब से चलना चाहते हैं अपने लाइफ में। दैट इज़ यू वांट फ्रीडम। आप फ्रीडम चाहते हैं कि आपको किसी के हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। आपने इसको वक्त पे छोड़ दिया है, आपने इसको वक्त का फ़ैसला मान लिया है, समय का फ़ैसला मान लिया, और अपने अपने अच्छे समय का आप वेट कर रहे हैं। सो यू आर डूइंग लॉट ऑफ सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव। यू कुड बी ओवरवेल्म्ड। आप इस विक्टिम मोड से बाहर आ रहे हैं और यू आर वेरी वेरी पैशनेट टुवर्ड्स your work or your self healing or yourself. Very very interesting and very very beautiful energy, Pisces. Now let's see the world. So what's there for your partner? The world. Please clarify the world for the person of the Pisces. Please clarify the world. My love team, please clarify the world for the person of the Pisces. Okay, we have got the Six of Wands, we have got the Eight of Wands, and we have got the Knight of Pentacles. तो जो आपके पर्सन हैं वो विक्ट्री चाहते हैं, वो सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में। वे चाहते हैं कि शायद वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं वन लास्ट टाइम दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू क्लियरली एंड दे आर प्लानिंग टुवर्ड्स इट। तो यू कैन सी दिस नाइट इज़ फेसिंग दिस मैन ऑन द हॉर्स। सो दे आर प्लानिंग, और मगर वो बहुत ही कॉशियस है, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, वो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। दे डोंट वांट टू रश हिम, दे आर प्लानिंग to come towards you very very slowly, and they want to talk to you and they want success and victory very very slowly. So they are acting very very smart, they are acting very cleverly, and they don't want to, वो कोई गलती करना नहीं चाहते हैं अगेन फिर से, and they don't want to lose you maybe because they are coming out of this toxic behavior. तो ये डेविल इन द रिवर्स। सो वो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कंट्रोल इश्यूज़ हों, या बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन हो, या और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, तो वो इससे निकलना चाहते हैं बिकॉज दे आर स्टक, दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन in your life. So they are wanting to move towards you but very very slowly. Okay, now let's clarify the King of Wands as the outcome. Please clarify the King of Wands for Pisces as the outcome. Who's this King of Wands? Okay, King of Wands is clarified by the Three of Wands, by the Chariot, and by the Three of Pentacles. तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अपने पावर में हैं एंड यू बोथ वांट टू मूव फॉरवर्ड। वन ऑफ यू कुड बी वेटिंग फॉर द अदर। मुझे लगता है अभी आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा है कि शायद वो वेट कर रहे हैं, दे आर, और मे बी यू आर प्लानिंग योर फ्यूचर, यू आर लुकिंग इन टू द फ्यूचर, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन इन योर लाइफ, एंड आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं और आप अपने ऊपर टोटली फोकस्ड हैं। यू आर फोकस्ड ऑन योर मनी, और अपने ऑफिस के काम में या अपने बिजनेस में या अपने किसी ऐसी सिचुएशन, टेक इट एज इट रेजोनेट्स अकॉर्डिंग, अप्लाई टू योर सिचुएशन इफ पॉसिबल। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग यू। तो नोबडी इज़ ट्राइंग टू टेक एक्शन। आपके पार्टनर आपसे बातचीत ज़रूर करना चाहते हैं एक आखिरी बार, दे वांट टू टेक अ चांस विद यू बट दे डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक्स। इस बार वे कोई भी गलती करना नहीं चाहते हैं, बट द आउटकम इज़ दैट यू बोथ आर फोकस्ड इन टू द फ्यूचर। ना आपका फ्यूचर कुछ अलग हो सकता है जो आप अपने लिए प्लान कर रहे हो, और आपके जो पर्सन का फ्यूचर है वो कुछ अलग हो सकता है। सो मे बी आपके पर्सन आपकी तरफ देखना चाहते हो। तो लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस फॉर द पर्सन, सॉरी फॉर कैंसर। व्हाट्स द एडवाइस फॉर कैंसर? वी हैव गॉट द डव स्पिरिट, बी पीस। तो आपके लिए यही एडवाइस है कैंसर की बी पीसफुल। डव का मतलब है पिजन। वी हैव गॉट बिलीव इन योर सेल्फ, बी पीसफुल। आप अपने आप में रहें, अपनी एनर्जी में रहें, बिकॉज यू आर हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। योर टाइम इज़ चेंजिंग विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो कुछ भी हो रहा है ये डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है, तो उसको प्ले करने दें। डोंट ट्राई टू फाइट थिंग्स। समय के साथ लड़ने की कोशिश ना करें, अपनी एनर्जी में रहें, बी पीसफुल, बी काम, बी लविंग,
बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स ऑल्सो। और बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू Pisces, and I hope you got something from it. Please hit the like button if you got the message, and see you next time, and bye bye.